Hello everyone, this is Mansoor Mustafa. This video is the part 2 of the MCQs from the past papers for the topic of pressure. In part 1, I explained the questions related to the solid pressure, liquid pressure and hydraulic systems. In this part, I'll explain the MCQs which are related to the gas pressure. So if you haven't watched the part 1, so first go to that video, then you will have a better understanding of the questions related to the gas pressure. Now let's start. Before solving the question, let's have a quick review of the gas pressure. Now when we talk about the gas pressure, the common type of gas pressure is the sorry, atmospheric pressure. This is the pressure which is exerted by air. और ये जो atmospheric pressure होता है, it has maximum value at the sea level or at the surface of earth, और ये altitude के साथ ये value decrease होती जाती है. Means कि if an object moves at some particular height, तो ये value जो है वो decrease होती जाती है. And this pressure is measured by a device which is called barometer. So this is a shape of a mercury barometer. Remember this thing that other liquids can also be used in the barometer, but this is showing the shape of a mercury barometer. Shape is same for all liquids, only this height will vary for other liquids. Now what happens, there is a liquid dish or you can say liquid container at the bottom, और इस liquid container के अंदर there is a vertical glass tube, and this glass tube is closed from the top. Now what happens, when air starts exerting pressure on this liquid, let's say in this case we have mercury, so this mercury will start rising in this tube. अब ये जो mercury level होता है this tube में, that determines the value of atmospheric pressure. किस तरह डिटरमिन करता है? नाउ इफ mercury is rising up to 760 millimeters, तो ये जो वैल्यू होती है, this value represents the maximum value of atmospheric pressure, and in pascals this value is equals to 1.05 into 10 power 5 pascals. ठीक है, this is the maximum value of the atmospheric pressure and this is obtained at the sea level. Now this pressure, this value of pressure is also called 1 atm. 1 atm means के 1 atmospheric pressure, and this is also called 760 millimeters of mercury, or if we convert mercury is the symbol Hg is the symbol for the mercury, means that this is 760 millimeters of mercury, or if we convert it into centimeters, so that will become 76 centimeters of mercury, or in meters this value is 0.76 meters. Okay. Now as I told you that this value decreases with altitude, it means that atmospheric pressure is maximum at sea level, in at which mercury rises up to 760 millimeters, and this value is minimum at the Mount Everest, which is the highest peak at the surface of earth. So at Mount Everest, the mercury rises in the barometer up to 253 millimeters. It means that this is the minimum value of atmospheric pressure. Now let's start solving questions. Now the first question is that a long tube full of mercury is inverted in the small dish of mercury. Means that this is setup is showing the barometer. Now what you have to do, the mercury level in the tube falls, leaving the vacuum at the top. When the atmospheric pressure falls, which range decreases? मतलब ये कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, तो आउट ऑफ दीज गिवन रेंजेस, कौन कौन सी रेंजेस गिवन है हमें? पी क्यू, आर एस एंड आर क्यू या फिर पी एस, इनमें से कौन सी रेंज है जो कि डिक्रीज होगी? अब बिफोर डिस्कसिंग दैट रेंज, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स, तो इस ट्यूब के ऊपर या इस मरकरी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. नाउ दिस इज द इफेक्ट इन द दिस डिवाइस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स. तो क्या होगा, मरकरी इस ट्यूब के अंदर फॉल करना स्टार्ट करेगी. अब जब ये मरकरी इस ट्यूब के अंदर फॉल करेगी, तो डेफिनेटली ये जो डिश की सरफेस है दैट विल राइज, बिकॉज जो मरकरी यहाँ से फॉल करेगी दैट विल राइज इन द दिस डिश. इसका मतलब ये है कि अब कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि चेंज हो जाएंगे. दिस क्यूब, दिस वाज द previous position of Q, now it is shifted to this position. Similarly, R has shifted to upper position.
अब ये दो पॉइंट्स के चेंज होने से अब हम देखते हैं कौन से डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है. नाउ दिस वाज द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द क्यू एंड आर एंड दिस इज द न्यू पोजीशन. अब इस न्यू पोजीशन की वजह से अब अगर हम इन डिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो लेंथ पी क्यू एंड आर एस हैज इंक्रीज्ड. मतलब ये जो पी क्यू लेंथ है, अब क्यू पॉइंट्स क्यू के नीचे की तरफ आ गया, आर पॉइंट ऊपर की तरफ आ गया, तो पी क्यू एंड आर एस ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. सिमिलरली जो लेंथ क्यू आर है वो डिक्रीज हो गया. दिस इज द क्यू आर. अब देखिए क्यू नीचे की तरफ आएगा, आर ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्यू आर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और ये जो पी एस डिस्टेंस मीन्स के दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज अनचेंज्ड. अब ये हमने समराइज कर दिया फॉर ऑल इफेक्ट्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि आउट ऑफ दीज लेंथ कौन सी लेंथ जो है डिक्रीज हो रही है. नाउ वी कैन क्लियरली आंसर वो कौन सी लेंथ है, दैट इज लेंथ क्यू आर. नाउ मीन्स के अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट वे में आता है कि अगर कौन सी लेंथ इंक्रीज हो रही है, या फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पी क्यू और आर एस, तो अब आप क्लियरली आंसर कर सकते हैं क्यू पी क्यू एंड आर एस इंक्रीज होंगे, क्यू आर डिक्रीज होगी, और जो पी एस डिस्टेंस है इट विल रिमेन unchanged. Now next question, this is almost same type of question. इसमें you have to find out which diagram shows the distance to be measured to find out atmospheric pressure. This is again showing a barometer. अब देखिए just like in previous questions, atmospheric pressure कौन सी पॉइंट से या कौन सी लेंथ से मेजर हो रहा था, दैट वाज क्यू आर पॉइंट या क्यू आर लेंथ. तो अब अगर हम इस क्यू आर लेंथ को कंपेयर करें फ्रॉम दीज गिवन ऑप्शंस, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जिसमें ये जो लेंथ है दिस इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now next question is again same type of question. Again you have to find out which height is the measure of atmospheric pressure. So it is clear that that height is C. Now next question is that bubbles of gas escaping from the mud of the bottom of the deep lake rise to the surface. As the bubble rise, they get larger. Why this is? Now question is that जब ये बबल जनरेट होके सरफेस की तरफ मूव करे तो इनका साइज लार्जर हो रहा है. तो आपने रीजन बताना है कि ये साइज लार्जर क्यों हो रहा है. नाउ डेफिनेटली दैट विल डिपेंड ऑन द प्रेशर. तो अब हम देखते हैं कि प्रेशर कैसे चेंज होगा व्हेन दिस बबल विल राइज टू द सरफेस. नाउ इफ यू कंसीडर द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिकॉज वाटर प्रेशर जो सरफेस से जब नीचे मूव करेंगे देन वाटर प्रेशर विल स्टार्ट एक्टिंग. इट मीन्स के सरफेस के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वाटर प्रेशर क्या होगा, उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करेगा. एंड दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्रेशर कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ. ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में देखा था. वाटर प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है. तो इट मीन्स के जब ये इफ वी मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वाटर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा. तो अब वाटर प्रेशर के इंक्रीज होने से ओवरऑल प्रेशर भी इंक्रीज होगा अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे. नाउ अब इन बबल्स के ऊपर जो प्रेशर होगा at the bottom, because water pressure is also maximum along with the atmospheric pressure, तो ओवरऑल इसके ऊपर प्रेशर जो होगा बहुत ज्यादा होगा. अब जैसे जैसे बबल टॉप की तरफ राइज करेंगे, because of the decrease in water pressure, remember this thing, atmospheric pressure will not change, it will remain same, only water pressure is decreasing. तो इसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर भी डिक्रीज होगा. जब ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज होगा तो बबल का जो साइज है वो लार्जर होता रहेगा. मीन्स कि उनके ऊपर प्रेशर कम होगा तो उनका साइज लार्जर हो जाएगा. नाउ ये साइज हमने बता दिया कि लार्जर क्यों हो रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द वाटर प्रेशर. मतलब वाटर जब ये टॉप की तरफ मूव करेंगे तो ये वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा. नाउ अगर हम ऑप्शंस को देखें, option A and B are about the changing atmospheric pressure. तो atmospheric pressure will not change, it will remain same. अब अगर हम option C को देखें तो it is saying that water pressure on the bubble decreases. So this is the correct option कि जब bubbles top की तरफ move करेंगे तो उनके पर जो water pressure होगा वो decrease होगा, जिसकी वजह से उनका जो size है वो larger हो जाएगा. Now these questions were from the एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और गैस प्रेशर हो तो उसको हम किस तरह मेजर करते हैं. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस बैरोमीटर.
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और प्रेशर हो, सो दैट प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड मैनोमीटर. So this is the shape of manometer. There are two vertical tubes which are connected in a U-shaped design. अब ये इस तरह होती है कि from these both these tubes are open at the top. अब एक साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और दूसरी साइड से जो अदर गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट उस गैस को इंसर्ट करते हैं. नाउ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन दीज ट्यूब्स, ये लिक्विड मरकरी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बट प्रेफरली इट इज मरकरी. तो इस लिक्विड की जो लेवल होती है इन दीज टू ट्यूब्स, दैट डिटरमाइंस द डिफरेंस ऑफ दीज प्रेशर्स. किस तरह डिफरेंस डिटरमाइन करेगा? अगर दोनों वर्टिकल कॉलम्स में लिक्विड इज राइजिंग अप टू द सेम लेवल, सो इसका मतलब ये होगा कि बोथ प्रेशर्स आर इक्वल. ठीक. नाउ अगर ये प्रेशर इस तरह वेरी कर रहा है या जो लिक्विड इस तरह वेरी कर रहा है दिस कॉलम्स, कि जिस कॉलम में लिक्विड लेवल कम है, मींस के इन दिस केस अगर लेफ्ट कॉलम जो है इसमें लिक्विड लेवल जो है वो कम है एज कंपेयर टू द लिक्विड इन द राइट कॉलम, सो दैट इंडिकेट्स के जिस साइड का लिक्विड लेवल कम है इस साइड का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या ग्रेटर होगा. सेम लाइक अगर आप देखें लेफ्ट इन राइट कॉलम अगर प्रेशर कम होगा या आप ये कहें लिक्विड लेवल ज़्यादा होगा, सो दैट विल इंडिकेट लो प्रेशर इन द लेफ्ट कॉलम. मीन्स के इन सिंपल वर्ड्स, जिस कॉलम की लेंथ कम होगी इट मीन्स के उस साइड का जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा. नाउ अब ये प्रेशर हम मेजर किस तरह करते हैं? गैस प्रेशर. सो दिस गैस प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग फार्मूला. दिस सेम फार्मूला वी यूज फॉर द लिक्विड प्रेशर, ओनली विद द डिफरेंस इज दैट इसमें ये जो H है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द डेप्थ, बट दिस H रिप्रेजेंट्स द हाइट डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉलम्स. मतलब इन दोनों कॉलम्स में जो हाइट डिफरेंस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H. नाउ इस H को कैलकुलेट करने के बाद we'll use this formula to calculate what is the pressure difference or pressure of the gas. अगर हमने total pressure find करना हो तो simply what we'll do, we'll just add atmospheric pressure and the pressure of the other gas. Now let's start solving the questions. Now first question is that a U-tube containing water is used in the manometer. अब देखें ये manometer है और इसमें liquid कौन सा यूज हो रहा है? Water. नाउ अब आप देखें एक साइड से ओपन टू द एटमॉस्फेयर, मींस के यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसर्टेड होगा एंड दिस ओपनिंग इज फॉर द इन अदर गैस जिसका हमने फाइंड करना है कि वो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी. नाउ इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड दैट ये दोनों जो कॉलम्स हैं लिक्विड कॉलम्स दे आर नॉट एट द सेम डेप्थ. इसका मतलब है दोनों प्रेशर डिफरेंट होंगे. अब डिफरेंट होंगे तो जिस साइड का कॉलम मींस के जिस साइड की जो हाइट है वो कम है, it means के pressure of this side will be greater. So in this case atmospheric pressure is greater than the pressure of this gas. Now we have to determine कि वो gas pressure जो हम insert करें उस gas का pressure कितना है. So for that first of all we have to calculate this height. अब ये height हमें कैसे पता चलेगी? ये 20 सेंटीमीटर एंड ये 20 सेंटीमीटर, ये this total height is 40 सेंटीमीटर. अब ये 40 सेंटीमीटर हो गई, बट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व कि आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है इन दीज ऑप्शंस प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन पास्कल. सो जस्ट रिकॉल इन पार्ट 1 आई एक्सप्लेन, आई टोल्ड यू कि अगर आपने पास्कल में प्रेशर कैलकुलेट करना है सो ऑल रिमेनिंग यूनिट्स मस्ट आल्सो बी इन एसआई यूनिट्स. तो इसका मतलब है ये जो हाइट हमने सेंटीमीटर्स में गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स. तो अब 40 सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें दैट इज 0.4 मीटर्स. नाउ अब हमारे पास जो गैस का फार्मूला है दैट इज डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट डिफरेंस. तो अब हमारे पास वी हैव ऑल वैल्यूज, सो जस्ट put the values and we get an answer that is 4000 pascals. Means के option B is the correct one. Now next question is that the diagram shows a manometer containing mercury that is sealed at the one end. What happens to the distance h when the manometer is taken to the top of the mountain? आपने बताना है कि अगर इसी मरकरी बैरोमीटर को मैनोमीटर को अगर आप ऐसी प्लेस पे ले जाते हैं, टॉप ऑफ माउंटेन पे ले जाते हैं, तो एच पे क्या इफेक्ट होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं टॉप पे जाने से होगा क्या.
नाउ दिस इज नाउ जब हम टॉप पे जाएंगे मींस के माउंटेन पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस्ड होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा, मरकरी विल स्टार्ट राइजिंग इन दिस कॉलम बिकॉज दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस होगी तो मरकरी इस कॉलम में राइज करने लगेगा। जब मरकरी राइज करेगा तो इसका मतलब है ये जो एच है विच इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉलम्स दैट विल रिड्यूस, बिकॉज जब एक कॉलम राइज करेगा तो इस एच की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। और वो रिड्यूस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So the correct option is option A. It decreases because the atmospheric pressure decreases with the height. Now next question. The diagram shows a simple manometer that contains a liquid. Side X contains connected to the gas supply of the pressure R. Side Y is open to the atmospheric pressure. अब आपने बताना है ये जो H है which pressure is the H used to measure. आपने ये बताना है ये H pressure किस चीज को मेजर करेगा। अब देखिए ये जो हाइट होती है दैट इंडिकेट्स द प्रेशर डिफरेंस ऑफ दीज टू गैसेस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके अलावा द अदर गैस विच इज बीइंग इंसर्टेड, इन दोनों गैसेस के प्रेशर डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो प्रेशर डिफरेंस का मतलब ये मीन्स के अब देखें इस केस में लार्जर वैल्यू किसकी होगी, आर की, बिकॉज जिस इसकी लेंथ कम है और एस की वैल्यू ज्यादा है इस वाले कॉलम में, इट मीन्स के इट विल हैव लोअर वैल्यू। तो डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वैल्यू, मीन्स के यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एस फ्रॉम द आर, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ए, मतलब एच जो होगा किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ दीज टू एस एंड आर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Now next question, a manometer is attached to a gas cylinder as shown. What is the pressure difference in centimeters of the water shown by the manometer? आपने सिर्फ यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बताना है सेंटीमीटर्स में, तो कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, दोनों कॉलम्स का जो हाइट का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग एक कॉलम जो है दैट इज अप टू 16 और दूसरा जो कॉलम है इट्स अप टू 25, सो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज 9 सेंटीमीटर्स। Now again we have next question related to the manometer. Uh, the diagram shows a manometer connected to the gas container. The density of the mercury. अब यहाँ पे जो हम liquid use करें that is the mercury. इसकी density है 13,600 kilograms per cubic meter. Gravitation field strength given at 10. What is the pressure difference between the gas in the container and the atmosphere? मीन्स कि आपने फाइंड करना है ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कितना है। सो फॉर द प्रेशर डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एच फाइंड करना पड़ेगा। तो एच कैसे फाइंड करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एंड दैट इज 0.40 मीटर्स। जब हमने एच फाइंड कर लिया उसके बाद सिंपल वी हैव दिस फार्मूला फॉर द प्रेशर डिफरेंस दैट इज डेंसिटी, ग्रेविटी एंड डेप्थ। और डेंसिटी, रिमेंबर दिस थिंग, ये गैस की डेंसिटी नहीं होती, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच इज यूज्ड इन द मैनोमीटर। तो यहाँ पर हम मरकरी यूज करें तो मरकरी की जो डेंसिटी है दैट इज 13,600 kilograms per cubic meter. So just put the values and we find the value of the pressure that is 15,400 pascals. Means के option C is the correct one. Next question, again this is related to the manometer. आपको the pressure of the gas in the found using a water manometer. The density, अब previous question में mercury थी तो mercury की density given थी, in this question we are using water, तो यहाँ पर जो density वो भी water की given है। What is the pressure above the atmospheric pressure of the gas in the cylinder? Simply you have to find out the gas pressure. So first of all convert this centimeters to meters, then find the pressure using the same formula. So we got an answer that is 2000 pascals. Means the option B. Again next question is related to the manometer. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड करना है what is the pressure of the gas supply. अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताना है कि गैस सप्लाई कितना वेरी कर रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एच फाइंड करनी पड़ेगी, मीन्स के जो हाइट डिफरेंस है ये फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट इज 18 सेंटीमीटर। अब हाइट डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने ये भी बताना है कि ये जो गैस प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लार्जर होगा या ये स्मॉलर होगा, या अब मीन्स के बिलो होगा या अबव होगा। सो वो हमें पता चलेगा कि इफ
the mercury or the liquid in this column is lower, that will represent more pressure. तो जिस column में liquid level lower होती है, that column indicates या that column represents more pressure. So in this case जो गैस सप्लाई है इस कॉलम में लिक्विड लेवल जो है दैट इज लोअर, सो इट मींस के दिस गैस प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वो कितना ग्रेटर है, दिस इज 18 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 18 सेंटीमीटर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस के ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. गैस प्रेशर जो है ये 18 सेंटीमीटर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अगर ये फॉर एग्जांपल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड है ये लोअर होती तो देन आंसर कुड बी 18 सेंटीमीटर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी दिस इज ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. व्हाट यू हैव टू डू, यू आर गिवन अ मैनोमीटर और आपने ये बताना है which statement about the pressure of the gas supply is true. The pressure मीन्स कि अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेते हैं क्या होगा. H जो है, अब यहाँ पर देखें गैस वाली जो साइड है इट इज हैविंग द लोअर प्रेशर, लोअर लेवल, इट मीन्स कि अगेन दिस प्रेशर विल बी ग्रेटर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कितना ग्रेटर होगा, बाय दिस हाइट डिफरेंस. So that is the pressure is 8 centimeter above the atmospheric pressure. It means the option D is the correct one. Now in this question again we are given a manometer. अब हमने क्या करना है, ये जो लिक्विड है मैनोमीटर का, वी आर रिप्लेसिंग दिस लिक्विड विथ मींस के वी आर रिप्लेसिंग दिस वाटर विद अ मरकरी. तो आपने बताना है अगर आप वाटर को मरकरी से रिप्लेस करोगे तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ दीज लिक्विड कॉलम्स. तो अब आप देखें मरकरी हैज अ हायर डेंसिटी देन द वाटर. तो इससे क्या होगा कि ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज करेगा दैट विल आल्सो अप टू अ लोअर लेवल, बट that will not change the positions of these columns. मतलब जिस साइड का प्रेशर ग्रेटर होगा उसी साइड का जो लिक्विड लेवल होगा वो लोअर होगा, इट विल रिमेन सेम एज इट इज. तो अब अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो इन दोनों में इट इज नॉट शोइंग एनी चेंज इन द लिक्विड कॉलम, सो दैट विल नॉट दैट कैन नॉट बी ट्रू. अब अगर आप सी और डी को देखें, दे बोथ आर शोइंग स्मॉलर चेंज इन द मरकरी, दैट कैन बी ट्रू. बट अगर आप डी को देखें, डी में जो गैस वाली साइड है इसमें लिक्विड राइज करा, इसकी जो लिक्विड हाइट है दैट इज ग्रेटर, बट दैट इज नॉट करेक्ट वन बिकॉज ओरिजिनली जो गैस सप्लाई है इसका जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a manometer is connected to a gas supply. Again this is the air pressure and this is the gas pressure, और इसका जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर. अगेन यू हैव टू आंसर ये 8 क्या होना चाहिए, बिकॉज अब आप देखें अगेन गैस सप्लाई का जो लिक्विड लेवल है दैट इज एट द लोअर लेवल, इट मींस के गैस सप्लाई का जो प्रेशर होगा दैट इज ग्रेटर देन द एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कितना ग्रेटर होगा, दैट इज measured by this height h and that is 8 centimeter. means के गैस सप्लाई का जो प्रेशर है that is 8 centimeter above or it is 8 centimeter more than the atmospheric pressure. So option A is the correct one. Now next question, this is the same type of question, yeah, same question which we have already solved. This is just a repeated question. Now there is very important relationship of the gas. This is what we have to discuss. That is the pressure volume relationship. Now just let's have a quick overview that if temperature is constant, means if we keep temperature constant, so for a given mass of gas the relationship between pressure and volume is that they are inversely related. means के अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. एंड वी हैव अ वेरी फेमस gas equation for this relationship, that is P1 V1 equals to P2 and V2. This P1 and V1 are representing the initial conditions. means कि अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे उसके साथ वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. So left hand side is representing initial conditions before changing the pressure and right hand side are showing if you are changing the pressure or volume तो उसके साथ जो other quantity change होगी, so that is represented by these values. So अब इनके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट
The graph shows how the pressure of fixed mass of a gas varies with the volume at constant temperature. अब देखें pressure और volume, this is what we have discussed कि they are inversely related. Now in this question it is represented in a graphical form. अब आपने ये बताना है from this given information कि अगर pressure की value 25 किलो पास्कल हो जाए तो what should be the value of the volume at this pressure. तो अब देखें generally if we are given the graphs and we have to find out the value which is not mentioned in the graph, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि मीन्स कि if we extend the graph till 25 किलो पास्कल्स तो हमें पता चल जाएगा what is the value of the volume. But remember this thing, keep this thing in your mind कि आप ग्राफ को एक्सटेंड या स्लोप को एक्सटेंड सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका आपका जो स्लोप अगर वो कांस्टेंट होगा या यू कैन से देयर इज इफ देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप ओनली देन यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू. But if there is a curve in the graph which is showing a non-linear relationship, तो अब curve में आप next value को predict नहीं कर सकते from the graph. ठीक बेटा, so आप इस line को extend नहीं करेंगे. So अगर extend नहीं करेंगे then how we'll find out the value. So अब आप देखें जो values आपको given है pressure की या volume की, let's say we are given these two values 100 किलो पास्कल एंड 50 किलो पास्कल. तो आप कोई सी भी एक वैल्यू को कंसीडर कर लें. लेट से हम कंसीडर करते हैं 100 को एज अ P1. अब 100 किलो पास्कल पे जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी विल रिप्रेजेंट एट V1 एंड दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. अब ये हो गया P1 V1. सेम लाइक जो P2 की वैल्यू है विच इज वी हैव टू गिवन वी आर गिवन दैट इज 25 किलो पास्कल. अब हमने इस वैल्यू पे फाइंड करनी है वॉल्यूम की वैल्यू, सो दैट विल बी V2. नाउ अगर अब इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें अकॉर्डिंग टू V2, सो दैट इक्वेशन विल बिकम P1 V1 डिवाइडेड बाय P2. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज. P1 कितनी है, दैट इज 100 किलो पास्कल, V1 that is 10 and P2 is 25 kilopascal, so we'll get an answer 40 cubic centimeters. So option A, oh sorry, D is the correct one. Now next question, a gas is trapped inside a cylinder by a movable piston. The length of the gas column is 20 centimeters and the pressure inside the cylinder is P. The piston is pulled out the distance 30 centimeters so that the length of the gas column is now 50 centimeter. Now temperature is constant. आपने बताना है what is the new value of the pressure. अब आप देखें this is a gas cylinder. Now if you just move this piston, so remember this thing, इस piston को move करने से इस container का या cylinder का volume change नहीं होगा, only this length will change. इसका मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, सॉरी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट विल नॉट चेंज. इसका मतलब है यहाँ पर जो एरिया होगा वो सेम होगा, ओनली जो इसकी ये जो लेंथ है वो वेरी कर रही है. नाउ वी हैव द इक्वेशन P1 V1 equals to P2 V2, but as area is not changing, so volume को हम represent कर सकते हैं area multiply by this distance. So on both sides this will be area and multiply by distance. अब area, as area is not changing, so area will be cancel out. So अब हमारे पास equation क्या रह गई, P1 multiply by D1. D1 means के the length before exerting the या before increasing this pressure. इसी तरह D2 क्या होगा, the length आफ्टर एक्सर्टिंग द प्रेशर, और दोनों की वैल्यूज भी हमें गिवन है. हमने क्या फाइंड करना है, P2 की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ जस्ट अरेंज दिस इक्वेशन फॉर द P2 एंड फाइंड पुट द वैल्यूज. सो वी विल गेट वैल्यू फॉर द P2 दैट इज 2.5 P. 2.5 P मींस के दिस इज 2.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर. जो पहले प्रेशर था उससे कितना लार्जर होगा ये प्रेशर, 2.5 टाइम्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas occupies a volume 2 cubic meters in a cylinder at a pressure 240 kilopascals. A piston compresses the gas until the volume is 0.50 cubic meter. Temperature is unchanged. What is the new pressure? Again, this is the V1, this is P1 and this is V2. हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, P2 की. So simply arrange the equation and put the values and you will get an answer 960 kilopascal. So अगर किसी भी point पे if you have any difficulty to understanding question, just pause the video and just
watch the solution, then you will have an idea कि question हमने किस तरह solve किया है. So option B is the correct one. Now in next question, which graph shows the total external pressure acting on a submarine at different depths below the surface of the sea? अब क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करें कि इट इज आस्किंग अबाउट द टोटल एक्सटर्नल प्रेशर. अब ये टोटल एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स के प्रेशर ऑफ द वाटर अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अब आपने बताना है जो टोटल प्रेशर है वो डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा. नाउ थोड़ी देर के लिए अगर हम टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिमूव कर दें, सिर्फ वाटर प्रेशर का रिलेशनशिप फाइंड कर दें, तो रिलेशनशिप ऑफ वाटर इज दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ. ठीक है बेटा, वाटर के साथ जो डेप्थ के साथ है प्रेशर इंक्रीज होता है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इट रिमेन्स सेम. इसका मतलब है जो टोटल प्रेशर होगा वो भी डेप्थ के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इस तरह से इंक्रीज होगा कि इफ द डेप्थ इज जीरो that total pressure will not become zero. Reason is that जब depth zero होगी तो water pressure तो zero हो जाएगा, but still there is the atmospheric pressure, so overall pressure will not become zero. So अब अगर हम compare करें तो these two graphs means के option B and option D can represent this statement, but as दिस इज आस्किंग अबाउट द टोटल प्रेशर. अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ वाटर प्रेशर का पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, बट एज इट इज आस्किंग अबाउट द टोटल प्रेशर, सो फॉर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, बिकॉज टोटल प्रेशर मीन्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच विल नॉट बिकम जीरो एज डेप्थ बिकम जीरो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the same type of question which we have solved. Air is trapped in a cylinder by a piston. अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बट ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड. ठीक है, आउटवर्ड मूव कर रहा है. अब जो प्रीवियस लेंथ थी दैट वाज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज फर्दर मूव्ड 40 सेंटीमीटर. अब आपने P2 की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ we'll use the same method because area is not changing, तो area will be cancel out. But keep this thing in mind कि यहाँ पे जो आप D2 की वैल्यू पुट करेंगे that is not 40, that is 60. Reason is that D2 is the total length after changing the pressure. तो ये total length जो होगी that is 60 सेंटीमीटर not 40 सेंटीमीटर. तो now simply put the values. जो D1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और P1 is also means के represented by P and हमने फाइंड करनी P2 की वैल्यू, so that will become P3 means के this is 1/3 of the original pressure. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. सो एज वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली रिलेटेड. जो वॉल्यूम इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग सो प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड. Now, next question. In airtight container holds a fixed mass of a gas. Its pressure and the volume are measured on 4 occasions when the temperature is 20 degrees. के temperature same है, pressure और volume measure करें. Which set of the readings is not correct? Correct कौन सी रीडिंग है जो कि इनमें से करेक्ट नहीं है. अब कैसे हमें पता चलेगा? Now, this is the relationship between pressure and volume that they are inversely related. Now this is the rule of physics कि whenever you want to remove this proportionality sign तो उसके लिए आपको equality sign के साथ you have to use a constant. So let's say this constant as a k. तो ये क्या हो जाएगा k. अब अगर हम इस k की वैल्यू फाइंड करना चाहें या सिंपली अगर हम if we just take v on the opposite side so that will become product of प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू के. इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं बट उनकी जो प्रोडक्ट होगी दैट विल रिमेन सेम एवरी टाइम. मींस कि अगर प्रेशर को चेंज करते हैं उसके रिजल्ट में वॉल्यूम चेंज होगा बट ओवरऑल उनकी जो प्रोडक्ट होगी दैट विल रिमेन सेम. सो अब अगर जो हमें ऑप्शंस गिवन है we'll calculate the product of mass and volume दोनों हर कॉलम हर वैल्यू के लिए. देन we'll see कि आउट ऑफ 4 वैल्यूज कौन सी वैल्यू है जिसमें k की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब सेम 3 में सेम आएगी, जो रिमेनिंग होगा उसमें डिफरेंट होगी, तो इट मीन्स के दैट इज नॉट द करेक्ट वन. सो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, so now we can observe in option B, C and D we are getting the same value of k except option A. It means के option A में जो values हैं that are incorrect values. Now next question, again we are given
values for the temperature, pressure and volume. अब देखें in both conditions bottom of the lake and surface of the lake temperature is constant और pressure vary कर रहा है from 500 kilopascals to 100 kilopascals. Now आपने बताना है कि volume किस तरह vary करेगा, मींस के surface पे जो volume होगा वो किस तरह vary करेगा. Now simply assign this as a P1, this is P2 and this volume is V1 because it's the bottom, so that is V1 और V2 हमने find करना है. So now we'll be using same equation and just put the values. So we'll get 5 cubic meters. So that is the volume at the surface of the lake. Now next question is that a partially inflated balloon is placed inside a bale jar. The bale jar is connected to an air pump. The air pump is switched on the air and air is removed from the bell. मतलब previously आप देखें air was filled inside the bell jar, अब air remove हो जाती है. Now जब ये air remove होगी तो आपने बताना है what happens to the pressure and the volume of the gas inside the balloon. आपने बताना है इस बलून के वॉल्यूम और प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा. नाउ बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, अब देखें previously pressure on the balloon is due to the air pressure and the pressure of the gas inside the balloon, because अगर ये इसकी सराउंडिंग में एयर होगी तो बलून के ऊपर एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी और इनसाइड द बलून जो गैस होगी वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी. बट व्हेन एयर इज पम्प्ड आउट तो अब क्या होगा, only the pressure which is acting on the balloon is the pressure inside the means के pressure of the gas which is inside the balloon. इसका मतलब ये होगा कि अब एयर को रिमूव करने के बाद जो ओवरऑल प्रेशर है बलून पे that will reduce because अब एयर प्रेशर नहीं है, only pressure is due to the gas pressure. Now if pressure is reduced तो वॉल्यूम और प्रेशर दे आर इनवर्सली रिलेटेड, मींस कि अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज्ड. अब हम फाइंड कर सकते हैं आंसर, प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. Next question is that 4 syringes contain air at the atmospheric pressure. The air in 4 syringes is slowly compressed. Results are given in the table. Which syringe shows the smallest pressure change? आपने बताना है इनमें से जो सबसे कम चेंज आएगा प्रेशर में सिरिंज में वो आपने बताना है. आप देखें, आप नाउ the options which we are given they are representing the volume. अब इनमें से हम प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? Let's consider this as V1, so this will become V2. इसी तरह जो P1 होगा उसको आप कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं, लेट्स से हम उसको P1 कह रहे हैं और P2 हमने फाइंड करना है. सो वील बी यूजिंग द सेम इक्वेशन. सो इस इक्वेशन से अगर हम P2 की वैल्यू फाइंड करें फॉर ऑल दीज ऑप्शंस, कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट वाली वैल्यू की बात करें तो देखें this is 50, that is P1, means के P1 and multiply by V1, so V1 is 10 and divided by P1 is the value, means के this is P1 और V2 की जो वैल्यू है that is 10, so we'll get an answer 5 P1, means के जो P2 होगा that will be 5 times of the P1. इसी तरह अगर हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करें so we are getting smaller value in option B, means के जिसमें जो P2 है that is only 2 times of the initial pressure. So this is the correct option. Now in next question, the end of the bicycle pump is sealed. The temperature of the air does not change as the piston pushed in. The final volume trapped is the 1/4 of the original volume. How does the pressure of the trapped air change? Means कि अगर वॉल्यूम जो है वो 1/4 हो रहा है तो आप बताना है प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा. So as pressure and volume are inversely related, so if the volume is changed to 1/4 तो pressure क्या होगा? It will increase by 4 times because volume decrease हो रहा है, जितने times volume decrease होगा pressure उतने times increase होगी. So option D is the correct one. Now next question, some gas is trapped in the large syringe by a piston. The atmospheric pressure is 100 kilopascal. The pressure gauge indicates that the gas pressure is 200 kilopascals above the atmospheric pressure. The piston moves outward and the volume of the trapped gas doubles. The temperature remains constant. What is the new pressure? मतलब आपने ये बताना है, आपको जो प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, अगर वॉल्यूम डबल हो जाता है तो what will be the new value of pressure. तो अब देखें इस
के ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहे होंगे, सो कौन कौन से प्रेशर होंगे? एक दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज 100 किलो पास्कल एंड द गैस प्रेशर इज 200. इट मींस के ओवरऑल जो इसके ऊपर प्रेशर होगा दैट इज 300 किलो पास्कल. एंड रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली रिलेटेड. अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर क्या होगा? इट विल रिड्यूस टू हाफ. तो इसका मतलब है जब वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर विल रिड्यूस टू हाफ एंड हाफ ऑफ 300 इज 150 किलो पास्कल. मींस के जब वॉल्यूम डबल हो जाएगा सो इसका जो प्रेशर होगा दैट विल रिड्यूस्ड टू 150 किलो पास्कल. मींस के ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. Now next question is that some air is trapped inside a small balloon. Average kinetic energy of the air molecules in the balloon is increased. What remains the same? आपने ये बताना है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है सो आउट ऑफ दीज गिवन क्वांटिटीज कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि चेंज नहीं होगी. सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो उसके साथ डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी. टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा बिकॉज टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी दे आर इंटर रिलेटेड. टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है. इट मींस के दैट विल आल्सो चेंज. सेम लाइक वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. अगर मींस के काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा. मींस के ओनली थिंग विच विल रिमेन सेम इज द मास ऑफ द एयर इन द बलून. दैट विल नॉट चेंज. Now this question is again the same type of question which we have solved. आपने ये बताना है जब आप पिस्टन को मूव कर रहे हैं अब इसका डिस्टेंस 50 से 30 सेंटीमीटर हो रहा है तो what will be the change in pressure. So again we'll use the same method to find out the value of pressure. अब यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी मीन्स के जो P2 की जो डिस्टेंस after pressure that is 20 centimeter. So from this we calculate the value that is 2.5 pressure. P means that this is 2.5 of the original pressure. So option D is the correct one. Now next question, again this is also the same type of question. If the distance is changing from 10 centimeter to 6 centimeter, आपने ये बताना है pressure कैसे vary करेगा. Again use the same formula, same method. So we calculate pressure that is 10 by 6 of the original pressure. P is the atmospheric pressure. या आप ये कह लें the initial pressure. So the final pressure will become 10 upon 6 of the original pressure. So option C is the correct. Now we have last question. Which graph shows the relationship between the pressure and the volume of the fixed mass of a gas at constant temperature? तो pressure और volume का relation find करना है. So pressure and volume they are inversely related and this is shown by the graph in option C. So this is the correct option. So this is all about the questions related to the pressure. So if you have any question related to these questions or related to any topic, feel free to contact on my WhatsApp number or on my email address. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.